آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ماضی دفن کر کے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ بامعنی مذاکرات کے ذریعے امن عمل شروع ہونے کے لیے ہمسایہ ملک کو مقبوضہ کشمیر میں سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان نے خطے میں اسلحے کی دوڑ میں شامل ہونے کے خلاف مزاحمت کی۔ Being one of the most impoverished regions of the world, we end up spending a lot of our money on defense, which naturally comes at the expense of human development. Pakistan has been one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. افغانستان میں پیس پروسیس ہمارے مضبوط ارادوں کا عکاس ہے۔ افغان امن عمل کے لیے ہمارے تعاون اور انتہائی حمایت کی وجہ سے ہی طالبان اور امریکہ تاریخی امن معاہدے تک پہنچے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ افغان تجارت کے فروغ کے لیے از سر نو پاک افغان تجارتی معاہدہ تشکیل دیا، افغانستان کو بھارت تک رسائی دی۔ Role in current quest for peace in Afghanistan is proof of our goodwill. Our close collaboration and crucial support for peace process has led us to the historic agreement between Taliban and US. We will continue to emphasize on this peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. Our all-out support to Afghanistan peace process to enhance Afghanistan's trade and connectivity by re-energizing Afghan-Pakistan transit trade agreement and also providing access to Afghanistan to export her goods to India. Improving economic and trade environment along Pak-Afghan border by establishing border markets and development of infrastructure. Being part of energy and trade corridor binding Central, South and West Asia through land routes and inviting Afghanistan to be part of CPEC. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو کہا جاتا تھا اس ہفتے گھر چلی جائے گی، بار بار حکومت جانے کی پیش گوئیاں ہوتی رہیں۔ ہمیں عوام نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، 5 سال بعد احتساب ہونا چاہیے کہ ہم نے ملک اور عوام کے لیے کیا کیا۔ حکومت کرتی کیا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، موقع دیتی ہے عام لوگوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکے۔ 380 ارب روپیہ بینکوں کو کہا کہ صرف گھروں کے قرضے کے لیے رکھیں۔ 5 مرلے کے گھر کے اوپر 5% قرضہ ہے، 1 لاکھ گھر تک 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے ہر گھر پہ۔ 25 سال پرانی اسکیم کو ریوائیو کیا گیا اور آج آپ کے سامنے 2.5 سالوں میں یہ پورا سارا ایک سوسائٹی بن چکی ہے اور کھڑی ہو گئی ہے۔ 80th امینڈمنٹ میں سندھ کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے اپنے اوپر ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں، انسینٹیوز وہاں بھی ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ پنجاب میں اور پختونخوا کے اندر، بلوچستان میں بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ صرف راوی پروجیکٹ، نیا پاکستان پروجیکٹ اور یہ ہمارا جو سینٹرل ڈسٹرکٹ اگر بنڈل آئلینڈ نہ بھی کیا جائے، یہی 50 لاکھ سے زیادہ گھر بن جائیں گے۔ قبضہ گروپ کے اوپر پوری ہم نے جہاد کر دی ہے۔ جس طرح لاہور میں ایک بہت بڑا قبضہ گروپ ہے، وہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ملا ہوا تھا پچھلی حکومت کی۔ نہ پولیس ان کو کچھ کہتی تھی، نہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی عدالت میں جا کے یا ان کے قبضے چھڑانے۔ یہ جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں، جدھر ان کا فاسٹ ٹریک ہوگا، ان کے جو بھی کیس ہوں گے، ہم نے فیصلہ کیا وہ فاسٹ ٹریک ان کے فیصلے۔ ہماری تو حکومت آئی تو ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہو گئی ہے، پر پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ فیل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے 5 سال کے بعد۔
हुकूमत का वादा पूरा, गरीब मजदूर को अपनी छत फराहम करने का आगाज। मेहनत कश तबके में घर और फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नया पाकिस्तान नई सोच का नाम है। 25 साल पुराने प्रोजेक्ट का ख्वाब हकीकत में बदलना बड़ी कामयाबी है। 1500 फ्लैट्स, अब अगले फेज में फिर से 1500 पेशावर में और सारी जगह काम शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। 25 साल से कभी किसी ने नहीं सोचा था। हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम, एक नया तर्ज हुकूमत ले आई। किराए पे मिलते थे घर वर्कर्स को, वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा, घर भी उनका अपना हो जाएगा। हमें डिले हुआ है। हम ये जो हमने वादा किया था लोगों से घर बनाने का, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि 2 साल के बाद वो फोरक्लोजर कानून अदालत से क्लियर हुआ। स्टेट बैंक गवर्नर रजा बाकर को खास तौर पर फिर से ताकीद करता हूं कि सारे प्राइवेट बैंक्स को जिन्होंने वादा किया हुआ है वो अब इन्फोर्स करें, उन कर्जा लेना आसान हो। गवर्नमेंट 3 लाख रुपया हर घर के ऊपर दे रही है। हमने जो सूद है वो भी रोक लिया। हमारे मुल्क का सूद ऊपर चला भी जाए खुदा न खास्ता, लेकिन लोगों को 5% से ज्यादा कभी भी सूद नहीं देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो अकेला ही पाकिस्तान की माईशत को भी उठा सकता है, लोगों को रोजगार भी दे सकता है, दौलत में इजाफा कर सकता है, ताकि हमारे ऊपर जो चढ़े हुए हैं कर्जों को हम वापस करना शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, गुज़श्ता दौर में LDA में गैर कानूनी अलॉटमेंट्स की गई, मुस्तहकीन के प्लॉट सियासी शख्सियात को दे दिए गए। अब एंटी करप्शन और गैर कानूनी कब्जे ख़त्म कराने की हिदायत कर दी गई है। हम चाहते हैं कानून की अमलदारी और शफाफियत से सीधे चलें। 85 से लेकर 90 तक जब मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो LDA के अंदर जो उन्होंने गैर कानूनी अलाटमेंट्स की थी, 10% कोटा जो कि चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी कोटा था, उससे ओवर एंड एबव ये जो अलाटमेंट्स हैं ये की गई हैं। इसमें 15 MPs और 1 सेनेटर शामिल हैं। कमरुज़्ज़मान खान जिनको उस वक्त DG LDA लगाया गया और उन्होंने ये सारा काम सरअंजाम दिया। ये जितनी भी अलाटमेंट्स की गई हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर की गई हैं और मेरिट से हट के की गई हैं, हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए हैं कि जो तमाम इलीगल इस तरह के काम हुए हैं उनके ऊपर एक्शन करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नून लीग के दौर में 1400 प्लॉट्स कानून की खिलाफ वर्जी करके अलॉट किए गए। अब प्लॉट से मुतालिक वसूलियाँ हो रही हैं। साहब का वादा है रिकवरीज करने का, वो इनसे रिकवरीज होनी है, क्योंकि ये एक सवाल पैदा होगा अभी कि प्लॉट्स तो अलॉट हो चुके और अभी वो अगले 4 हाथ बिक भी चुके होंगे, तो आगे इनका क्या किया जाएगा। तो आगे कानूनी तौर पे जिसने अलॉट किया, चाहे वो नवाज शरीफ था या उसके साथ जो भी उस वक्त LDA के लोग थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जिन लोगों को अलॉट की गई गैर कानूनी, वो भी मुल्ज़मान बनेंगे, लेकिन उनसे रिकवरीज भी होंगी क्योंकि उन्होंने वो बेनिफिट उठाया है। तो ये वो स्टेप है जो बेहतरी की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने जो अपना पॉलिटिकल एम्पायर बनाया है 85 के बाद से, वो भी अवामी वसाइल के ऊपर बनाया है। इसमें कोई जो अक्सर आप फरमाते हैं खुद ही कि जी हम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो अपने घर का तो आपने आना तक खर्च नहीं किया। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी और चीज़ों को भी दुरुस्त समत में ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और मरियम नवाज के खिलाफ नैब का घेरा मजीद तंग। 26 मार्च को जमीन की गैर कानूनी मुंतकली केस में भी तलब कर लिया। 2013 में शरीफ खानदान पर 1500 केनाल अराजी मिली भगत से हासिल करने का इल्ज़ाम है। मरियम नवाज को मतलूबा रिकॉर्ड के साथ आने की हिदायत की गई है। नैब ने मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल केस में भी 26 मार्च को ही तलब कर रखा है। नैब का काम है करप्शन पकड़ना। 1 पैसे की जब उनको करप्शन नहीं मिली, अब रोना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन पे इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उसके बहाने वो केस आज तक ना ये बना सके ना रेफरेंस रजिस्टर कर सके। नैब अंधी है क्या? मरियम नवाज मुसलसल नैब के रडार पर, एक के बाद एक केस में तलबी। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस के साथ अराजी की गैर कानूनी मुंतकली केस में भी बुला लिया। नैब लाहौर ने नून लीग की नायब सदर को तकरीबन 1500 कनाल की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली केस में भी तलब किया है। नैब नोटिस में कहा गया है कि शरीफ खानदान ने 2013 में जमीन मिली भगत से हासिल की। 2015 में DCO और DG LDA अहद चीमा ने मास्टर प्लान तब्दील कर दिया। मिली भगत से हजारों कनाल अराजी को ग्रीनलैंड एरिया करार दिया गया। मरियम नवाज को मतलूबा रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है।
नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स केस में भी तलब कर रखा है। मरियम नवाज पिछले साल 11 अगस्त को जत्थे के साथ पेश हुई थी। कारकुनान की हंगामा आराई के बाइस उनकी पेशी नहीं हो सकी थी। नैब अंधी है क्या? नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर अंडा फेंकने की कोशिश की गई। अंडा कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नहीं लग सका बल्कि करीब खड़ी गाड़ी को लगा। क्या सूरत हाल रही उसके बाद एक बार फिर उस्मान अली से जानते हैं। बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर जब पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए तो समाअत के बाद जैसे ही वो पेशावर हाई कोर्ट के गेट से बाहर निकले तो उनके साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर थे वो भी उनके साथ मौजूद थे। तो ऐसे में एक शख्स वहां से आया और उन्होंने उन पर अंडा फेंकने की कोशिश की। अंडा जो था वो कैप्टन सफदर, क्योंकि वहाँ पर ज्यादा लोग थे तो इस वजह से उनको नहीं लगा और वहाँ करीब गाड़ी जो थी वहाँ पर लगा है। उसके साथ जो लोग जा रहे थे उनके कपड़ों पर भी इसके कुछ निशानात आए। कैप्टन सफदर जो है उसके बाद वो वहाँ पर जो उनके साथी थे वो भी उस बंदे की तरफ जो है वो लटके और उनका पीछे जो है उन्होंने भागना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उन लोगों के साथ थे और वो भी अपने हाथ में जो है एक डंडा उठाए उनके। ठीक है उस्मान अली, आपने तफसीलात दे दी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। खर्च करके वो कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी, जो कि कॉटन पाकिस्तान की कैश क्रॉप होती थी। और मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूं कि 2018 के अंदर जो बेल्स की पैदावार थी वो 11,948 मिलियन बेल्स थी, जो कि गिर के 9,178 हो गई है। यानी कि 2018 में जब इन्होंने टेक ओवर किया तो 11,948 मिलियन बेल्स थी, जो कि अब गिर के 9,178 मिलियन बेल्स पे कॉटन प्रोडक्शन आ गई है। प्राइम मिनिस्टर कैन डू द मैथ्स एंड ही शुड डू द मैथ्स कि हर चीज का आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं या आपके इख्तिदार में, आपके दौरे हुकूमत में, आपके जो सुकरात बुकरात हुकूमत चला रहे हैं उसके अदवार में ये हो रहा है। फर्टिलाइजर की पिछले 8 माह में, हम अपने आप को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान का 65% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। पिछले 8 माह में 8 बार फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा हुआ है, 8 बार। तो जब फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा होगा तो सब्जी की कीमत में भी इजाफा होगा। फर्टिलाइजर की कीमतों की इजाजत आप देते हैं, फिर कमिश्नर कराची से सवाल पूछते हैं भाई कीमतें क्यों बढ़ रही। बिजली की कीमतों में आप इजाफा करते हैं, सवाल आप पूछते हैं डिप्टी कमिश्नर से कि कीमतें क्यों बढ़ रही। गैस की कीमतों में आप इजाफा करते हैं, सवाल आप हमसे पूछते हैं। अद्वियात की कीमतों में ड्रैप इजाफा करता है, सवाल आप हमसे पूछते हैं। सारी दुनिया नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। भारत ने 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लिया है। बांग्लादेश ने अगेन मिलियंस में अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया है। हमारे पास अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की खरीदी हुई एक वैक्सीन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। एक वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान, मदीने की रियासत, इमरान खान साहब की हुकूमत की खरीदी हुई एक वैक्सीन नहीं है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कुत्तों के काटने के केस में बड़ा फैसला। रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर और ज्ञान चंद असरानी की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच के तहरीरी फैसले के मुताबिक MPAs को कुत्तों के काटने के वाक़यात पर राबता न करने पर मुअत्तल किया गया। अदालत ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को दोनों MPAs की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि PDM इजलास लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक था, लेकिन कुछ सरबराहान इसमें इस्तीफों का मामला ले आए। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों पर मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। ये जो PDM की मीटिंग थी, ये PDM की मीटिंग थी 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से। इस मीटिंग में एक और इशू ले आए PDM के सरबराहान इस्तीफों का।
चेयरमैन बिलावल साहब इसके बारे में बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि इस्तीफ़ों को हम इस्तेमाल करेंगे एज एन एटम बॉम्ब को, और इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में ना लें कि हमें पता है कि ये सिलेक्टेड उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार थे, लेकिन फिर पीडीएम ने मुश्तरका फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च को अभी आगे किया जाए और पीपल्स पार्टी को टाइम दिया जाए कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से सलाह मशवरा करके आ जाए। तो यहाँ तक ये बात है, ना यू टर्न है, अगेन यू टर्न वाले कोई और हैं। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में किए तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। देखना है कि जो वादे आज होंगे उनकी मुद्दत कितनी होगी। हमारे लिए भी अब दिन गुजारने मुश्किल हो रहे हैं। उम्मीद है आज की मीटिंग में फैसले होंगे। जा रहा हो कि एक सेनेटर 35, 30 और 70 करोड़ तक का है। हमने खुद को कभी फरोख किया है। हमने अभी सेनेट के इंतखाबात के दौरान अपने हिस्से के तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। आज बड़ी फैसला कुन किस्म की एक मीटिंग हो रही है। वहाँ पर देखना यह है कि इन वादों की जो आज होंगे उसकी मुद्दत कितनी है। हमने तो कहा है ना कि हमने तो अपने सारे वादे, हमारा कोई वादा उधार नहीं है, सारा नकद खड़े होते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। हुकूमत भी है किसी हद तक मजबूर, इतनी नहीं है कि उसके लिए इतने साल गुजर जाते हैं। हमारे लिए भी अब दिन गुजारने मुश्किल हो रहे हैं। 25 मार्च को नश्तर पार्क में जितनी भी और जैसी भी है वो एमक्यूएम वहाँ पे जमा होकर अपने इस अज़्म का इजहार दोबारा करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus parents.